فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877400۔ حیدرآباد کے کوٹھی علاقے میں ڈی ایم ای دفتر کے احاطے میں آشا ورکروں نے احتجاج کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی طرف سے کیے گئے وعدے کے مطابق انہیں ماہانہ 18,000 روپے کا مقررہ مشاہرہ دیا جائے۔ کانگریس حکومت کی طرف سے انتخابات سے قبل کیے گئے وعدوں کو فوری پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آشا ورکروں نے زبردست مظاہرہ کیا۔ احتجاج کے دوران دفتر کے باہر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ پولیس نے صورتحال کو قابو میں کرنے کی کوشش کی تو آشا ورکروں اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ اس دوران ایک آشا ورکر نے سلطان بازار کے سی آئی سرینواس پر تماچا رسید کر دیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پولیس نے آشا ورکروں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ کانگریس پارٹی کی قومی لیڈر سونیا گاندھی کی سالگرہ مناتے ہوئے ریاستی آریہ ویشیہ سنگم کی چیئرپرسن کلوا سجاتا، کوکٹ پلی کانگریس پارٹی انچارج بنڈی رمیش، کوکٹ پلی حلقے بالاجی نگر، ماساپیٹ، اولڈ بوئناپلی اور کوکٹ پلی کے سینئر قائدین گوٹی مکلا وینکٹیشور راؤ جی وی آر نے سری ہری وردھن ریڈی اور سری میلمپلی ہنمنت راؤ کے ساتھ کیک کاٹنے کے پروگرام میں حصہ لیا اور طلبہ میں کتابیں بھی تقسیم کی اور کانگریس پارٹی کی قومی لیڈر سونیا گاندھی کی سالگرہ منائی۔ యాక్టివ్గా ఉండి సోషల్ మీడియా ద్వారా మన ప్రభుత్వం ఒక్క సంవత్సరంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారు, మరి భారతదేశంలో ఇన్ని تلنگانہ کسان کانگریس ریاستی جنرل سیکرٹری بورانچو سری کانت ریڈی نے کہا ہے کہ سونیا گاندھی کا نام تلنگانہ کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے تلنگانہ کی عوام کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کی تشکیل دی۔ یو پی اے چیئرپرسن سونیا گاندھی کی 78ویں سالگرہ تقریب ماوالا منڈل مستقل میں شاندار طریقے سے منائی گئی۔ سب سے پہلے کانگریس پارٹی قائدین اور کارکنوں نے سونیا گاندھی اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کی فلیکسی کو دودھ سے نہلایا اور کیک کاٹ کر جشن منایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ کسان کانگریس اور عادل آباد کی عوام کی طرف سے وہ انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ మనకు ఆమె జన్మదినం సందర్భంగా మనకు తెలంగాణను ఇవ్వడం జరిగింది। రాష్ట్రాన్ని కాంక్షిస్తూ యువత బలిదానాలు చేసుకోవడాన్ని చూసి చలించిపోయి బలిదానాలని ఆపాలన్న ఉద్దేశంతో మనకు తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది। రాష్ట్రం سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر وینوگوپالچاری نے کانگریس حکومت کے پرجا پالنا کے 1 سال کی کامیابی پر شہر کے نظام آباد ڈویژن نمبر 14 میں منعقدہ پروگراموں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی سطح پر کانگریس پارٹی ہی واحد ہے۔ سیکولر کہا جاتا ہے کہ کانگریس پارٹی ہی ہے اور گنگا جمنا تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے ریاست میں گزشتہ 10 سالوں سے برسر اقتدار رہنے والی حکومت نے 10 سال کے دوران BRS پارٹی سے وعدے کیے، لیکن ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ حاصل کیا گیا
किया लेकिन एक भी वादा नहीं। उन्होंने बीजेपी पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि निजामाबाद में बीजेपी के रुकन असेंबली ने अपने दौर में एक भी काम नहीं किया और अब MP भी बीजेपी का है और वो कुछ नहीं कर रहे। साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन व कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद दिगंबर राव पाटिल ने कहा है कि सोनिया गांधी कुर्बानी देने वाली एक खातून है जिन्होंने पार्टी की खातिर अपने ओहदों की कुर्बानी दी। आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में वाक़ कंदी नवाज रेड्डी कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की 78वीं सालगिरह की तकरीबात शानदार तरीके से मनाई गई। कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनों ने केक काट करते हुए एक दूसरे को खिलाकर अपने पसंदीदा लीडर की सालगिरह का जश्न मनाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने सोनिया गांधी की सताइश की जिन्होंने तेलंगाना के अवाम के जज्बात का ख्याल करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील किया। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी के मशवरे के मुताबिक हर लीडर और हर कारकुन को कांग्रेस पार्टी के मकसद की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। सभी को सोनिया गांधी का बर्थडे की मुबारकबाद। क्यों कि आज जो अपन अलग स्टेट में जो खड़े हैं तो सिर्फ सोनिया गांधी की मेहरबानी है। आप सबको मालूम है कि कितना मुश्किल से अपने को तेलंगाना आए और हम जवान थे, अभी भी जवानी थे, लेकिन जब जवान थे जब बहुत मार खाए पुलिस वालों का, हम इतना मार खाए तेलंगाना की तरफ से कोई नहीं दिया मगर सोनिया गांधी जी दिए। इस बात से हम सब आज खुशी सोनिया गांधी का बर्थडे मना रहे। खुशी की ये बात है कि आप जो सोनिया गांधी के नाम से, सोनिया गांधी छवि के नाम से जो हमने जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने कहा है कि हुकूमत विजया डेयरी खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करेगी और इसके तहत विजया डेयरी का दूध सरकारी यतीम खानों में फराहम किया जाएगा। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में वाक़ रिम्स हॉस्पिटल के अहाते में रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जयसिंह राठौड़ और विजया डेयरी DD मधुसूदन के हमरा तेलंगाना डेयरी इंडस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के तहत नए कायम करदा विजया डेयरी पार्लर का इफ्तिताह अंजाम दिया। सबसे पहले ख़ुसूसी पूजा की गई और रिबन काटा गया। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने लोगों से दरख्वास्त की कि वो विजय डेयरी की तरफ से पेश करदा अशिया की खरीदी करते हुए हिम्मत अफजाई करे। ఈరోజు మనం ప్రజాపాలన ప్రజా విజయోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు రిమ్స్ హాస్పిటల్లో విజయ డైరీ పార్లర్ ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. చాలా ఇది మంచి ఆలోచన. మన DD డైరీ గారు తర్వాత డైరెక్టర్ రిమ్స్ గారు ఇద్దరు కలిసి కూడా ఇక్కడ రిమ్స్లో ఇట్లా పార్లర్ పెడితే విజయ డైరీకి ఆదాయం కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్న పేషెంట్స్ కానీ అటెండెంట్స్ కానీ ఇంకా కూడా ఎవరైతే వచ్చిన వారికి నాణ్యత అయిన ఇక్కడ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ కానీ కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. ఇటువైపు మన డైరీ డిపార్ట్మెంట్ కోసం, ఇటువైపు మళ్ళీ హాస్పిటల్ కోసం అది ఒక విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. కాబట్టి ఇది చాలా మంచి ఆలోచన. సిమిలర్గా ఇంకా కూడా మనం కొద్ది రోజుల్లో ఇక్కడ RTCలో కూడా అక్కడ ఆదిలాబాద్ బస్ డిపోలో కూడా शहर हैदराबाद के इलाके मंगलहाट धूलपेट पुलिस स्टेशन हदूद में एक्साइज पुलिस की जानिब से एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर 400 ग्राम गांजा जब्त किया गया। बादजा पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई और कहा कि इस ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कई पुलिस अफसरान ने हिस्सा लिया और इस ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी जमयत भी रही और दीगर मुकामात पर तलाशी लेते हुए 400 ग्राम गांजे को जब्त किया गया। आज धूलपेट एरिया में पुलिस और एक्साइज जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है। इसमें DCP चंद्रमोहन साहब और वेंकट रेड्डी ACP साहब और पुलिस इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, ऐसे ही एडिशनल SP और एक्साइज के हमारे टीम पूरे 9 टीम बनाकर यहाँ पर रेड किया गया है। तो 400 ग्राम का गांजा तो मिला है, लेकिन तकरीबन आज के दिन बहुत कम हुआ है गांजा का सेल्स धूलपेट के अंदर। और अभी तक 4 साढ़े 4 महीने पहले जो ऑपरेशन धूलपेट के नाम से एक्साइज
हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलवी बैटर ट्रेविस हेड को दिन रात टेस्ट के दौरान जुबानी झगड़े पर आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुरतकब पाया गया और इन दोनों को सजा दिए जाने का इम्कान है। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स के मुताबिक डिसिप्लिनरी समाअत के बाद सिराज और हेड को कसूरवार करार दिया गया, ताहम उनके अच्छे साबिका रिकॉर्ड की वजह से दोनों पर मुमकिना तौर पर सिर्फ जुर्माना या सरजनिश की जाएगी। मुअत्तली का इम्कान नहीं है। ये वाकया मैच के दूसरे दिन पेश आया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। ट्रेविस हेड ने 141 गेंदों पर 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, जिसके बाद सिराज ने उन्हें बोल्ड किया और जुबानी झड़प के बाद जारहाना अंदाज में उन्हें रुखसत किया। इस वाक़े के बाद एडिलेड के तमाशाइयों ने सिराज को तनकीद का निशाना बनाया। ट्रेविस हेड ने दावा किया कि उन्होंने सिर्फ सिराज को वेल बोल्ड कहा था और इस पर सिराज के रद्देमल से मायूसी हुई, ताहम मोहम्मद सिराज ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हेड ने उन्हें गाली दी थी। मैंने सिर्फ विकेट का जश्न मनाया और उन्होंने मुझे गाली दी। आपने ये टीवी पर देखा होगा, मैंने शुरू में कुछ नहीं कहा, वही पहले बोले थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि झूठ है कि उन्होंने सिर्फ वेल बोल्ड कहा था। जो उन्होंने कहा वो सबके सामने है। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड ने भी वाकई में अपनी गलती तस्लीम की और कहा, इस वाक़े से पहले कोई तनाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा रद्देमल शायद थोड़ा ज्यादा था। वो यही वजह है कि मैंने जो किया इस पर मायूस हूँ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के साबिक सदर और पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी को उनके सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सोनिया गांधी की जिंदगी हर एक के लिए तहरीक का जरिया है और उनके काम करने का अंदाज लाखों लोगों को मुतासिर करता रहा। अपनी वक़ार तबीयत और महज़िब अंदाज से काम करने के लिए अपने तरीके से उन्होंने लातेदाद लोगों को हाशिए से कौमी धारे में लाने का काम किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर सोनिया गांधी को उनके यौम पैदाइश पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। उन्होंने सोनिया गांधी को गरीबों की मसीहा करार देते हुए कहा कि पसमानदा लोगों की हुकूक की एक हकीकी हिमायती नामसाइद हालात में भी इंतहाई शाइस्तगी, वक़ार और हिम्मत का मुजाहरा करने वाली अवामी जिंदगी में उनकी शिराकत ने लाखों लोगों को मुतासिर किया है। मैं उनकी लंबी जिंदगी और सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश करता हूँ। बॉलीवुड के माचो हीरो संजय दत्त की आने वाली फिल्म बागी 4 से उनका खूनखार लुक जारी कर दिया गया। एक्शन थ्रिलर बागी फ्रेंचाइज की अगली फिल्म बागी 4 का ऐलान चंद रोज कबल किया गया था। टाइगर श्रॉफ ने बागी फ्रेंचाइज की फिल्म बागी 2 और बागी 3 में काम किया है। अब टाइगर फिल्म बागी 4 में नजर आएंगे। संजय दत्त बागी 4 में एंट्री कर चुके हैं। इस फिल्म से संजय दत्त का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। टाइगर श्रॉफ ने अपने अकाउंट पर बागी 4 के विलन से पर्दा उठाया। उन्होंने संजय दत्त का एक पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में संजय दत्त खूनखार लुक में नजर आ रहे हैं। एक लड़की के बॉडी पकड़े कुर्सी पर बैठकर संजय दत्त चीख रहे हैं। पोस्टर के ऊपर लिखा है, हर आशिक खलनायक होता है। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और ए हर्षा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म बागी 4 5 सितंबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। रियासती हुकूमत ने जियोस 46 मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए नोटिस जारी किया है। जियोस 46 के मुतासरीन ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और इस दौरान अगली समाअत रवां महीने की 27 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आदित्य सोंडी, जी विद्यासागर और मिथुन शशांक इस टीम में शामिल थे जिसने मुतासरीन की तरफ से बहस हासिल की और इस मौके पर BRS के रियासती कायद दासुजो श्रवण कुमार और एनुगोला राकेश रेड्डी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत में शिरकत की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बात की है। दासुजो श्रवण ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत जो अवामी हुक्मरानी के त्योहारों का इनेकाद कर रही 46 मुतासरीन को सता रही इन बच्चों को भी अपनी खुशियों में शामिल किया जाए। BRS पार्टी के ताउन और KTR के ताउन से JVO के 46 मुतासरीन और इस केस में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि हम मुतासरीन की जानिब से रियासती हुकूमत पर हमला कर रहे बराए करम इस बेरोजगार नौजवानों के बारे में मुस्बित जवाब दें। हम रियासती हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि 27 जनवरी को होने वाले मुकदमे में 46 जियो के
मुतासरीन के साथ खड़े हों। अवामी हुक्मरानी को गुमराह नहीं होना चाहिए और तेलंगाना के देही तलबा और बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। और राकेश रेड्डी ने भी कहा है कि बीआरएस पार्टी साबिक वजीर और पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा है कि GO46 के मुतासरीन की हिमायत में हिंदुस्तान के आला तरीन अदालती दफ्तर का दरवाजा खटखटाया गया। మిత్రులారా మనకు అన్యాయం చేశారని చెప్పేసి ఆ రోజు ఏడ్చినప్పుడు మాకు రాకేష్ రెడ్డి దగ్గర ఉండి మీరేం బాధపడకండి, ఖచ్చితంగా హైకోర్టులో మనకి ఇలా జరిగింది కదా, మీరేం నిరుత్సాహపడకండి, మనకు అత్యున్నత న్యాయస్థానం మనకు సుప్రీంకోర్టు ఉంది, అక్కడే తీసుకెళ్లే బాధ్యత మాది అని చెప్పేసి మాకు ఆ రోజు మాకు భరోసా ఇచ్చాడు అన్న. కాబట్టి మా మిత్రులందరూ కూడా గమనించాలి. మిత్రులారా, ఏం కాదు, మీ యొక్క స్టడీని మీరు ఆపేయొద్దు. ఇంకా మనకి ఏదో ఉంది, ఇంకా ఏదో ఉంది చెప్పేసి మీకు ఆశలు పెడితే మీరు స్టడీని పక్కన పెట్టేసి మీరు మా ఏదో ఒక పని అంక అయితే కాదని చెప్పేసి మీరు అంతా పక్కన పెట్టేసి మీరు అట్టిగానే ఉంటే మీ యొక్క సమయం వృధా అవుతుందని చెప్పి ఉద్దేశంతోనే మేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ముగ్గురం మేము దీన్ని ఫాలో అప్ చేద్దామని చెప్పేసి మేము ముందే అనుకున్నాం. కాబట్టి మనకి ఎలా అయితే కాంగ్రెస్ నాయకులు మనకు మాటేసి కాటేశారో ఆ విధంగా మనం కూడా ఈ యొక్క ప్రయత్నం చేయాలి. ఇందులో భాగంగా నేను ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారికి కోరుకుంటున్నాను, దయచేసి మీకు నిజంగా మాకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर की जानिब से डिग्री कॉलेज बेरवा में बैनुल-अक़वामी इंसदाद बदउनवानी डे की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। प्रोग्राम का इनेकाद एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने डिग्री कॉलेज बेरवा के इश्तराक से किया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी एंटी करप्शन ब्यूरो डॉक्टर सलीम और एंटी करप्शन इंस्पेक्टर बहार खान थे और डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल बेरवा इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर कॉलेज के कई असातिज़ा ने भी शिरकत की। शिरका से खिताब करते हुए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर सलीम ने शिरका पर जोर दिया कि वो माशरे से बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंके। उन्होंने शिरका से कहा कि वो माशरे के लिए रोल मॉडल बने। उन्होंने बदउनवानी को रोकने में JNK ACB के किरदार पर भी रोशनी डाली। Assalamualaikum. Today I am here representing Government Degree College बीरवा, जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ ऑर्गेनाइज्ड बाय एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू एंड कश्मीर। हमें यहाँ पे करप्शन के बारे में हमें जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ बहुत ही मुझे अच्छा लगा। हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में ताकि हम अपना टैलेंट शो करें। अपने एकेडमिक करियर के साथ साथ हम यहाँ पे इस वाली फील्ड में भी आगे बढ़े। यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज हमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और हमें जो अप्रिसिएशन मिलती है, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलती है, फ्रेम मिलता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.